Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the upcoming examinations like DBT GRF and CSIR. So this is the day 12 of the free BET crash course and I hope you all are benefited from this series. So stay tuned and hit the like button to make me feel motivated, and subscribe my channel if you find it useful and if you want more content from this channel. So in this today video, we will discuss the most important topic, that is the histone, and also one of the important modification of histone, that is the histone acetylation, because this is the very important part from the genetics portion. So we will discuss it, and if you have any doubt you can write in the comment section, and stay tuned till the last, and thank you so much for watching. So before starting the topic, let's see this diagram and discuss it, and then we will start our today's topic through this diagram only. So basically, how the long stretch of DNA is packaged inside the small nucleus in our cell. So basically, if we talk about the eukaryotic cell, so a long lengthy DNA is packaged inside a small nucleus which is very much smaller in size. So how is it possible? It is just possible because of some of the proteins that are responsible to hold or to package the DNA inside it, and therefore this is only possible because of some of the protein we will discuss. So let's see one by one that what are the components which are responsible for the DNA packaging, and what exactly is histone, what exactly is chromatin, what exactly is nucleosome, because all these terms are synonymously used. बहुत सारे जगह में क्रोमैटिन पूछा जाता है, कहीं पे न्यूक्लियोसोम लिखा होता है, कहीं पे डायरेक्टली हिस्टोन लिखा होता है. तो कई बारी हमें कन्फ्यूजन होता है कि हिस्टोन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड it will be very much easy for you after watching this video, so stay tuned. So the eukaryotic DNA inside the cell is associated with proteins. So the exact name of that protein is histone. So the combination of this DNA and the histone, which is a protein, is known as chromatin. सो अगर सिंपल लैंग्वेज में क्रोमैटिन को अगर डिफाइन करना हो, सो क्रोमैटिन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए ऑन टू द हिस्टोन इज़ नोन एज क्रोमैटिन. सो अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो बेसिकली क्रोमैटिन इज़ ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज़ यूक्रोमैटिन विच अंडरगो द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड डिकंडेंसेशन, दैट इज़ जो एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए हमें ओपन अप डीएनए चाहिए होता है, वो हम कहते हैं उसे यूक्रोमैटिन. एंड जो हेट्रोक्रोमैटिन जो हमेशा ही कंडेंस्ड स्टेट में रहता है पूरे सेल साइकिल के दौरान, इवन इंटरफेस के टाइम पे भी, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन. इट मीन्स ट्रू क्रोमैटिन. इन बायोलॉजी EU स्टैंड्स फॉर ट्रू. सो द यूक्रोमैटिन इज बेसिकली द ट्रू टाइप ऑफ क्रोमैटिन इन विच द ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर, क्योंकि उसमें नॉर्मल कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन होता है, and the heterochromatin which remains in a highly condensed state and therefore transcription remains off. तो ये एक बेसिक था यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. सो क्रोमैटिन तो आपको समझ आ गया होगा, द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन इज नोन एज क्रोमैटिन. So basically if we talk about the most abundant protein in the chromatin, so it is histone. यानी जो क्रोमैटिन हम कह रहे थे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए अलॉन्ग विद द प्रोटीन. सो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्रोमैटिन. तो अगर हम बात करें कि कौन सा प्रोटीन जो है विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, विच इज़ इन मोस्ट अबंडेंट फॉर्म, तो वो होता है हिस्टोन. सो बेसिकली हिस्टोन जो है इट हैज़ 5 मेजर वेरिएंट्स, दैट इज़ H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. सो ये 5 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड जितने भी हिस्टोन्स हैं all have a high percentage of arginine and lysine, यानी कि बेसिक अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है, दैट इज़ आर्जिनिन एंड लाइसिन. पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है, जो हिस्टोन को क्या चार्ज देगा, नेट पॉजिटिव
चार्ज इट विल प्रोवाइड टू द हिस्टोन। यानी अगर एक क्वेश्चन उठ के आता है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ हिस्टोन, सो हिस्टोन हैज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड दैट इज arginine and lysine, and this positive charge attracts the negative charge of the phosphate of the DNA and therefore यही अट्रैक्शन क्या करता है, होल्ड करके रखता है डीएनए को कांटेक्ट में, किसके साथ में, हिस्टोन। सो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मैंने मेजर बताए कि हिस्टोन में आर्जिनिन एंड लाइसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, सो इट प्रोवाइड्स द नेट पॉजिटिव चार्ज टू द ओवरऑल हिस्टोन एंड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट the negative charge of the phosphate of the DNA structure and positive negative attract होंगे and this is the reason कि जो histone है वो strongly पकड़ के रखता है DNA को। So these are the characteristics of histone protein, the molecular weight of all the 5 variant. You can see here the H1 has a molecular weight of about 21,000 something and H2A has a lower molecular weight that is 13.9 एंड यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ था। द लोएस्ट मोलिकुलर वेट इज़ ऑफ H4 हिस्टोन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट है विच इज़ इक्वल टू दी हाईएस्ट नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो H1 में सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड होगा एंड सबसे लोएस्ट किस में होगा, H4 में, एंड दिस इज़ वाई इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा हेवियर होता है साइज में एंड विच इज़ द लोएस्ट इन साइज। तो H4 इज़ द लोएस्ट आउट ऑफ ऑल द 5 वेरिएंट्स एंड H1 इज़ द हाईएस्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोन प्रोटीन in our eukaryotic chromosome there are some non-histone chromosomal protein also which are abbreviated as NHC। यानी हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में रहते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सारा जो 100% प्रोटीन है वो पूरा 100% हिस्टोन नहीं होता है। इट इज़ दैट कि अबंडेंट अमाउंट में मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट जो है प्रोटीन का वो कवर अप होता है हिस्टोन से, बट देर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस दिस डायग्राम वेरी केयरफुली क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड एक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो ये वाला जो डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। सो please watch it carefully. So this diagram depicts the different level of organization of a DNA. So basically इसमें फोकस किस पे किया गया है, लेवल बाय लेवल फोकस किया गया है कि सबसे पहले हमारे पास जो DNA होता है वो कैसे अरेंज होता है लेवल बाय लेवल। सो सबसे पहला जो पार्ट होता है एट द सिंपलेस्ट लेवल, क्रोमैटिन इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो जो हमारा DNA डबल हेलिक्स है, इट विल बाइंड विद द हिस्टोन टू फॉर्म अ क्रोमैटिन। जो अभी हमने समझा क्रोमैटिन क्या है, सो DNA प्लस प्रोटीन इज नोन एज क्रोमैटिन। सो द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन। यानी कि यहाँ पे जो ये आप DNA का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये DNA का स्ट्रक्चर सबसे पहले बाइंड होगा किसके साथ में, DNA इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। And after that each nucleosome consists of 8 histone proteins around which the DNA wraps 1.65 times। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। सो थर्ड जो लेवल होता है, थर्ड लेवल इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोसोम विच कंसिस्ट ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर। वी ऑल नो दैट हिस्टोन ऑक्टामर मीन्स जो चार हमारा जो वेराइटी है H2A, H2B, H3 एंड H4, each variety has 2 quantities, so therefore histone octamer, हम उस पार्ट पे भी अभी जाएंगे। Let's finish this first and after that a chromatosome consists of a nucleosome plus the H1 histone। हमें पता है कि एक H1 प्रोटीन रहता है हिस्टोन ऑक्टामर के साथ में and that is known as the H1 histone। and ये जो ऑक्टामर है, हमारा जो न्यूक्लियोसोम जो हिस्टोन ऑक्टामर कंसिस्ट कर रहा था वो हमारा लिंक हो जाता है लिंकर DNA दैट इज दी H1 हिस्टोन, इसके साथ में मिलके क्रोमैटोसोम बनाता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम दिख रहा है 8 हिस्टोन्स का, ये यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए ये वाला स्ट्रक्चर बना
उसके बाद क्या बनता है, द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस अ 30 नैनोमीटर फाइबर. 30 नैनोमीटर का फाइबर बनता है, यहाँ पे यू कैन सी हियर. उसके बाद सिक्स्थ पार्ट क्या होता है, दैट फॉर्म्स लूप एवरेजिंग 300 नैनोमीटर इन लेंथ. देन फर्दर स्कैफोल्ड बढ़ जाता है, क्या होता है, नैनोमीटर में रैपिंग होते जाती है, सो दैट इट विल बी फिट इनसाइड द स्मॉल न्यूक्लियस. आफ्टर दैट the 300 nanometer fibers are compressed and folded to produce a 250 nanometer wide fiber, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड फाइनली टाइट कॉइलिंग ऑफ द 250 नैनोमीटर फाइबर प्रोड्यूसेस द क्रोमैटिड ऑफ द क्रोमोसोम. फिट होके फाइनली क्या बनता है, क्रोमैटिड बनता है. सो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल था दैट इज द सिंपली डीएनए, एंड देन it will bind to the histone to form a chromatin, and the DNA plus histone octamer complex is known as the nucleosome. Then this nucleosome will bind to the H1 histone, and that is known as the chromatosome. And after that the first form, that is the 30 nanometer fiber form, will be manufactured, and after that the formation of loop of 300 nanometer in length, and then इस टाइप की कॉइलिंग होने लगती है, और जो विड्थ होता है वो होता है 250 नैनोमीटर फाइबर में कन्वर्ट होने लगता है, एंड देन आफ्टर द फाइबर क्रोमैटिड में ये चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे लेवल बाय लेवल क्या हो रहा है, फाइनली हमारा जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज वे में सेट हो रहा है. अभी हमने देखा दैट द क्रोमैटिन हैज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट गोज थ्रू दी सेवरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो द सिंपलेस्ट इज, हमने देखा कि सबसे फर्स्ट स्टेप में जो सिंपलेस्ट लेवल था वो था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड आफ्टर दैट जो सबसे कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, फाइबर्स में कन्वर्ट है ना, एंड देन फाइबर्स जो थे वो क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो रहे थे. तो अभी यहाँ पे बात आती है कि क्रोमैटिन. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रोमैटिन, अगर हम इस क्रोमैटिन को हम विजुअलाइज करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, सो इट विल अपीयर लाइक दिस, अ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग. यानी कि ये जो हमने 12th क्लास से ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये वाला जो लाइन है वो पढ़ा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस. इस तरह से क्रोमैटिन को हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं. सो बेसिकली अगर हम देखें ये जो स्ट्रिंग है और ये जो बीड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो द स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटिंग द 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड द बीड इज रिप्रेजेंटिंग द क्रोमैटिन. यानी जो हम हमेशा बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जो पर्ल्स होते हैं वो एक धागे में जैसे हम लगाते हैं, गार्लैंड बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, लाइकवाइज ये जो अपीयरेंस है क्रोमैटिन का वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वैसा ही अपीयर होता है. एंड द स्ट्रिंग रेफर्स टू द 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड द बीड्स रेफर्स टू द क्रोमैटिन. सो अगर हम लोग इस पूरे सेटअप को हम क्या करें, डाइजेस्ट करवा दें न्यूक्लियस से, सो व्हाट वी विल गेट, अगर न्यूक्लियस से डाइजेस्ट कराएंगे तो डीएनए को वो फ्रैगमेंट कर देगा. सो डीएनए जब फ्रैगमेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमैटिन, दैट इज द न्यूक्लियोसोम. यानी अगर हम बात करें कि जब हमने इस बीड्स ऑन स्ट्रिंग को डाइजेस्ट करवा दिया न्यूक्लियस से, सो व्हाट न्यूक्लियस विल डू, न्यूक्लियस एंजाइम विल च्यू ऑल द डीएनए, सारे डीएनए को वो क्या कर देगा, क्लीव कर देगा. सो व्हाट विल रिमेन, ओनली दिस सिंपलर क्रोमैटिन विल रिमेन अलॉन्ग विथ सम ऑफ द प्रोटीन अटैच टू इट. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा जो डीएनए है या जो क्रोमैटिन है वो रेंडम एसोसिएट नहीं होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में. इंस्टेड वो क्या होता है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड होता है. एंड ऑल्सो जो अगर हम लोग देखें डाइजेशन के बाद जो बीड्स बच जाते हैं, एंड दैट सिंपलर बीड और द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमैटिन इज द न्यूक्लियोसोम. सो न्यूक्लियोसोम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोसोम कैसा होता है, द न्यूक्लियोसोम इज अ कोर पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ अ डीएनए wrapped about 2 times around an octamer, which consists of 4 different variants of histone, particularly H2A, H2B, H3 and H4. It means H2A का जो
क्वांटिटी है वो 2 रहेगा, H2B 2, H3 2 and H4 2, 2 plus 2 plus 2 plus 2 8, and that is why it is known as the histone octamer. So when the DNA is wrapped around this histone octamer, that structure is known as nucleosome. Now I hope आपको समझ आ गया हो कि न्यूक्लियोसोम क्या है. So यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि न्यूक्लियोसोम क्या है. न्यूक्लियोसोम जब DNA हमारा जो DNA पार्टिकल है वो अराउंड 2 टाइम्स कम्प्लीटली क्या होता है, रैपअप हो जाता है एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. यहाँ पे अब हिस्टोन ऑक्टामर क्या हो गया, H2A, H2B, H3 एंड H4 का. ईच हिस्टोन हैज़ 2 क्वांटिटीज़, तो इसीलिए ये पूरा मिला के क्या बन जाता है, 8 हिस्टोन, एंड दैट इज़ नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर. सो यहाँ पे क्विकली एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो हिस्टोन का. सो हिस्टोन्स आर न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डोमेन्स. सो हमें पता है कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज it contains basic amino acid residue and positively charged amino acid, that is lysine and arginine. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, positively charged. Now one more question, what are histones? This is the second question. So is it a lipid, carbohydrate, nucleotide, protein? So आप सभी capable होंगे इसका आंसर करने में. So basically histone is a protein and positively charged protein. So histones are globular protein which are responsible for binding of the DNA, or we can say that the wrapping of the DNA around the octet of histone. 2 पेयर होता है, H2A, H2B, H3 and H4. यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं मेंशन करना चाहूँगी. जो लेंथ होता है, कौन सा लेंथ, when the DNA is in direct contact with the हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि DNA जब डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसके, जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, उसका लेंथ कितना होता है, उसका लेंथ होता है अबाउट 145 टू 147 बेस पेयर. तो आपको ये वाला फिगर भी याद रखना होगा कि जो DNA और हिस्टोन जब डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं तो वो इन बिटवीन 145 टू 147 बेस पेयर होता है लेंथ में. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमैटोजोम. क्रोमैटोजोम हम किसे कहते हैं, यानी जब सारे कोर पार्टिकल, when all the core particle means the histone octamer, when it associates with the H1 histone, it is known as the chromatosome. आपको ये हमेशा याद रखना है because this is the next level of chromatin organization and it is asked, and each chromatosome encompasses about 167 base pair of DNA. यानी एक क्रोमैटोजोम में अबाउट 167 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है. ये भी आपको याद रखना है. ये 2 फैक्ट्स हमेशा पूछा जा सकता है. पहला तो व्हाट इज़ क्रोमैटोजोम एंड हाउ मच इट कंटेन्स द डीएनए, कितना अमाउंट डीएनए उसके पास होता है. तो ईच क्रोमैटोजोम कंटेन्स अबाउट 167 बेस पेयर ऑफ डीएनए. सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक दैट इज हिस्टोन एसिटाइलेशन. अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हिस्टोन एसिटाइलेशन, यू विल नॉट बी एबल टू वर्कआउट कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्योंकि आपको अगर हिस्टोन एसिटाइलेशन पढ़ना था तो आपको हिस्टोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिक एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट. सो आई हैव ट्राइड कि आपको हिस्टोन पहले अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस द हिस्टोन एसिटाइलेशन. सो बेसिकली एसिटाइलेशन मीन्स द एडिशन ऑफ और द अटैचमेंट ऑफ एसिटिल ग्रुप. सो हिस्टोन एसिटाइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब एसिटिल ग्रुप अटैच होगा हिस्टोन प्रोटीन में. इट मीन्स द एडिशन ऑफ द एसिटिल ग्रुप विच इज CH3CO to histone protein is known as histone acetylation. So the acetylation of histone usually stimulates transcription. You have to remember it, क्योंकि कुछ modifications क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रिड्यूस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, एंड सम ऑफ द मॉडिफिकेशन ट्रिगर्स और स्टिमुलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं कौन सा जो एसिटाइलेशन का प्रोसेस है वो स्टिमुलेट करता है. सो बेसिकली द एडिशन ऑफ सिंगल एसिटिल ग्रुप टू पर्टिकुलरली लाइसिन 16 इन द टेल ऑफ द H4 हिस्टोन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर. यानी कि जो
यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन कर देना चाहती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कोर पार्टिकल्स बनाते हैं, जब भी मैं ये बात कह रही हूँ कि कोर पार्टिकल्स, इट मीन्स कि H2A, H2B, H3 and H4. So the histone making the core particle are so much flexible because they have a tail containing about 11 to 37 amino acids. यानी न्यूक्लियोसोम जब बनता है 4 हिस्टोन के साथ, तो जो टेल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, एंड दीज टेल्स आर मेड अप ऑफ अबाउट 11 to 37 अमीनो एसिड एंड दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम outside to the nucleosome, and the positively charged amino acid in the tails of the histones interact with the negative charge of the phosphate of the DNA, and therefore it is responsible for holding the DNA tightly. यही रीज़न है कि जो टेल का पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है वो क्या करता है, डीएनए के फॉस्फेट से बाइंडिंग कर लेता है, एंड देयरफॉर क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहता है डीएनए का और हिस्टोन का। यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करूँगी, जो H1 होता है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कोर हिस्टोन बट इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। जो H1 है वो बाइंड होता है 20 to 22nd पेयर ऑफ द डीएनए, एंड डीएनए जॉइंस एंड लीव्स द ऑक्टोमर, बट इट हेल्प्स टू लॉक द डीएनए इनटू द प्लेस। इट मीन्स इट एक्ट एज अ क्लैम्प अराउंड द न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर। ये जो H1 है वो एज अ क्लैम्प काम करता है। क्लैम्प का काम क्या करता है, कोई भी चीज़ को फिक्स करके रखना, तो वैसे ही ये डीएनए को भी डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स में फिक्स करके रखता है एक जगह में। नाउ बैक टू द टॉपिक, कब ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाएगा, अगर एसिटाइलेशन होगा तो। एसिटाइलेशन पर्टिकुलरली कहाँ पे होगा, लाइसिन 16 में, और ये लाइसिन 16 कहाँ मिलेगा, H4 यानी हिस्टोन 4 के टेल वाले अमीनो एसिड रेसिड्यू में। आई हैव right now mentioned that the tail contains about 11 to 37 amino acid, और उसी टेल के लाइसिन 16 रेसिड्यू 16th पोजीशन के लाइसिन में जब एसिटिल ग्रुप अटैच होता है, दैट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर। अभी मैंने बताया था कि लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्रोमैटिन का, तो अगर 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर यानी बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं बना है तो क्या होगा, डीएनए एकदम लूजली पैक्ड है यानी कि खुला हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन विल अकर, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो एसिटाइलेशन है इट विल ऑलवेज इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन अनलेस स्टेटेड। अब हमें पता है कि एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, एंड दोज एंजाइम्स आर नोन एज हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेजेस विच आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, बिकॉज ये 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर बनने ही नहीं देते हैं, एंड देयरफॉर ट्रांसक्रिप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एसिटिल ग्रुप्स आर एडेड टू स्पेसिफिक लाइसिन रेसिड्यू ऑन द कोर हिस्टोन, एंड कौन से एंजाइम्स उसे कंप्लीट कराते हैं, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेजेस, जिसे HAT बोलते हैं, या फिर हम इसे KAT भी बोलते हैं, K फॉर लाइसिन, क्योंकि लाइसिन में ही जाके अटैच होता है। एंड रिमूवल ऑफ एसिटिल ग्रुप इज अकम्प्लिश्ड बाय, अगर एक ऐड कर रहा है तो कोई रिमूव भी करता होगा, सो द रिमूवल इज अकम्प्लिश्ड बाय द हिस्टोन डीएसिटाइलेज विच इज एब्रीविएटेड एज HDAC। एंड HDAC क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, स्टॉप करेगा। सो अगर हैड्स को हम बोलते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स होते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, तो ये जो HDAC होंगे इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल बताया, जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, व्हेन द लाइसिन ऑफ द 16th पोजीशन ऑफ द हिस्टोन H4 इज एसिटाइलेटेड, तब क्या होता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है, बिकॉज ये जो कॉम्पैक्ट 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर है ये नहीं बनता है। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये हमेशा आएगा एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज टेल है, यहाँ पे ये जो पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमेशा मैंने बताया था न्यूक्लियोसोम से बाहर की तरफ एक्सटेंडेड रहते हैं, एंड ये 11 टू अबाउट 37 अमीनो एसिड रेसिड्यू के रहते हैं। तो उसी में क्या होगा, 16th पोजीशन पे लाइसिन होगा, तो उसी 16th पोजीशन के लाइसिन पे अगर एसिटिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये क्या करता है, ये नहीं बना पाता है। क्या नहीं बना पाता है, 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर नहीं बना पाता है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो
कॉम्पैक्टनेस है वो नहीं बन पाता है, एंड कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा डीएनए तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो इजीली हो पाएगा। नाउ अगर आप समझ गए हैं तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच हिस्टोन्स आर एक्टेड अपॉन बाई HAT? HAT वॉज हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेजेज, तो इट इज़ दी ओनली H3 एंड H4 जहाँ पे क्या होता है एसिटिल ग्रुप जाके अटैच हो पाता है। सो these are the two histone residues that are having lysine side chain available for acetylation। याद रखिएगा लाइसिन में ही एसिटिल ग्रुप अटैच होता है, तो वो H3 एंड H4 के ही स्पेसिफिक लाइसिन रेसिड्यू में होता है। नाउ दिस फिफ्थ क्वेश्चन विच इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन एसिटाइलेशन इज एसोसिएटेड विथ active transcription in that region, RNA polymerase can easily interact with DNA। yes, this is the correct option। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन नो, ये तो इंक्रीज करता है क्योंकि ये 30 नैनोमीटर जो क्रोमैटिन फाइबर है उसे बनने नहीं देता है। टाइटली पैक्ड न्यूक्लियोसोम नो, नो चेंज इन क्रोमैटिन, ये भी नहीं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इट एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।